Good evening, students. Today we are going to study about self-concept, आत्म संप्रत्यय। तो सबसे पहले देखते हैं कि संप्रत्यय क्या होता है। उचित विचारों के लिए उचित संप्रत्ययों का होना अति आवश्यक है। ये ज्ञान को संगठित करने में सहायक होते हैं। वास्तव में संप्रत्यय तर्क, विद्या और समस्या समाधान में संयम पैदा करते हैं। आत्मसंप्रत्यय एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। किसी व्यक्ति का आत्मसंप्रत्यय उसका स्वयं के बारे में ज्ञान होता है। नॉलेज अबाउट वंस ओन सेल्फ। सर्वप्रथम जेम्स ने यह सुझाव दिया था कि व्यक्ति में निम्न प्रकार के आत्म प्रत्यय होते हैं। फर्स्ट, रियल सेल्फ, सेकंड, आइडियल सेल्फ एंड थर्ड, सोशल सेल्फ। लेकिन हाल ही के अध्ययनों से आत्मसंप्रत्यय को 4 वर्गों में बांटा गया है। बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। कार्ल रोजर्स मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका अदा की थी। कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। He was a humanist psychologist. Humanistic psychologists or theorists believed that our behavior is not a reaction to unconscious drives and conflicts, but rather a response to our immediate conscious experience of self and environment. Rogers believed that the forces that direct behavior are within us, and that when they are not distorted or blocked by our environment, they can be trusted to direct us toward self actualization, the highest realization of human potential. Self concept. Actually, the self is an organized, consistent set of perceptions, of beliefs about oneself. Once formed, the self plays a powerful role in guiding our perceptions and directing our behavior. The self, thus, has 2 facets. It is an object of perception, the self concept, and an internal entity that directs behavior. It helps us understand our relationship to the world. Concepts of self-concept. Once the self-concept is established, there is a tendency to maintain it, for it helps us understand our relationship to the world around us. We therefore have needs for self-consistency, an absence of conflict among self-perceptions, and congruence. Consistency between self-perception and experience. Any experience we have that is inconsistent or incongruous with our self-concept, including our perceptions of our own behavior, evokes threat or anxiety. Well-adjusted individuals can respond to threat adaptively by modifying the self-concept so that the experiences are congruent with the self. But other people choose to deny or distort their experiences to remove the incongruence, a strategy that can lead to what Rogers termed problems in living or problems in life. Thus, a person who always attributes interpersonal difficulties to shortcomings in another person will be unlikely to consider the possibility that he or she may have some self defeating behavior patterns that deserve attention. To preserve their self concepts, people not only interpret situations in self congruent ways, but they also behave in ways that will lead others to respond to them in a self confirming fashion. According to Rogers,
The degree of congruence between self concept and experience helps define one's level of adjustment. The more rigid and inflexible people's self concepts are, the less open they will be to their experiences and the more maladjusted they will become. If there is a significant degree of incongruence between self and experience, and if the experiences are forceful enough, the defenses used to deny and distort reality may collapse, resulting in extreme anxiety and a temporary disorganization of the self concept. और एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी भी दुविधा में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है और एक स्टेबिलिटी में आ जाता है. तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें एक बड़े अच्छे डायग्राम से आप देख सकते हैं, इन्होंने डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस दिखाया है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट and the experience. So this is a maladjustment. Maladjustment occurs when a person faced with incongruities between self and experience distorts or denies reality to make it consistent with self-concept. And on the right-hand side, you can see a fully functioning self. In contrast, extremely well-adjusted or fully functioning people integrate experiences into the self with minimal distortion so that they are able to profit fully from their experiences and lead a happy and fulfilling life. Now the components of self-concept. रॉजर्स के अनुसार आत्मसंप्रत्यय के निम्न 3 घटक होते हैं: सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड आइडियल सेल्फ. सेल्फ इमेज आत्म छवि से अभिप्राय है कि आप स्वयं में क्या देखते हैं. व्हाट डू यू सी इन योरसेल्फ. इससे हमेशा वास्तविकता के प्रतिबिंब का पता नहीं चलता. किसी व्यक्ति की आत्म छवि कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे माता पिता के प्रभाव, मित्र और मीडिया आदि. कुहुन ने आत्म छवि जानने के लिए 20 कथनों वाले प्रश्न का प्रयोग किया. उसने लोगों से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा कि मैं कौन हूं. और अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं 12th क्लास की, जिसमें पर्सनालिटी चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें आपको ये शुरुआती स्तर पे ये चैप्टर यहीं से शुरू होता है. और उसमें 20 तरीकों से पूछा गया है. इससे निम्न 4 प्रकार की अनुक्रियाएं प्राप्त हुई: भौतिक या शारीरिक विवरण, फिजिकल डिस्क्रिप्शन. सेकंड था सामाजिक भूमिकाएं, सोशल रोल्स. फिर व्यक्तिगत गुणज, पर्सनल ट्रेट्स. और अस्तित्ववादी कथन. दूसरा है हमारा सेल्फ एस्टीम, आत्म प्रतिष्ठा. आत्म प्रतिष्ठा का संबंध उस सीमा से है जहां तक हम स्वयं को स्वीकार करते हैं या हम स्वयं का कितना मूल्य समझते हैं. आत्म प्रतिष्ठा में हमेशा मूल्यांकन की डिग्री शामिल होती है और हमारे स्वयं के बारे में नकारात्मक या सकारात्मक विचार होते हैं. तीसरा, आदर्श आत्म या आइडियल सेल्फ. इसका अर्थ है कि आप क्या बनना चाहते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू बी. यदि तुम क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो में कोई अंतर है, तो यह अंतर तुम्हारे मूल्यांकन को प्रभावित करेगा. अतः आत्म छवि, अहम आदर्श और आत्म प्रतिष्ठा में घनिष्ठ संबंध है. व्यक्ति का आदर्श आत्म, आइडियल सेल्फ, स्थायी नहीं हो सकता. आदर्श आत्म जीवन में क्या होता है तथा व्यक्ति के अनुभवों के साथ मेल नहीं खा सकता. A person's ideal self may not be consistent with what actually happens in life and experiences of the person. Hence, a difference may exist between a person's ideal self and actual experience. This is called incongruence. Components of self-concept आप देख सकते हैं, इसमें diagrammatically बड़े अच्छे से explain किया गया है. And now we move on to the next slide. मॉडल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. आत्म संप्रत्यय के दूसरे मॉडल के 3 भाग होते हैं: आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ एस्टीम,
स्थिरता स्टेबिलिटी और आत्मदक्षता सेल्फ एफिकेसी। आत्म प्रतिष्ठा मूल्यांकनात्मक घटक होता है। इसी भाग के अंतर्गत व्यक्ति अपने आत्म मूल्य के बारे में कोई निर्णय लेता है। स्थिरता का संबंध किसी के आत्म संप्रत्यय के संगठन और निरंतरता से होता है। तीसरा तत्व है आत्मदक्षता सेल्फ एफिकेसी अर्थात आत्मविश्वास। ये विशेष रूप से किसी की योग्यताओं से जुड़ा होता है। आत्म संप्रत्यय का विकास 7 या 8 वर्ष की आयु के आसपास तब होता है जब बच्चे स्वयं की भावनाओं, योग्यताओं और प्रतिपुष्टि की व्याख्याएं करना शुरू कर देते हैं, जिसे वे अपने माता पिता, अध्यापकों और अपने साथियों से स्वयं के बारे में प्राप्त करते हैं। आत्मसंप्रत्यय के विकास की शुरुआत के बारे में लोगों की राय भिन्न है, लेकिन सभी आत्मसंप्रत्यय के महत्व के बारे, व्यक्ति के व्यवहारों के प्रभावित होने के बारे, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक परिणामों के बारे, शैक्षिक उपलब्धियों के बारे, प्रसन्नता के स्तर, चिंता, सामाजिक एकीकरण, आत्म प्रतिष्ठा और जीवन संतुष्टि के बारे में एक मत है। इसके अतिरिक्त आत्मसंप्रत्यय वर्तमान तक ही सीमित नहीं होता। इसमें भूतकाल और भविष्यकाल भी शामिल होते हैं। भविष्यकालीन आत्मसंप्रत्यय से अभिप्राय है व्यक्ति भविष्य में क्या बन सकता है, इसके संबंध में व्यक्ति के विचार, या वे क्या बनना पसंद करेगा या वे क्या बनने से डरता है। भविष्य संबंधी आत्मसंप्रत्यय आशाओं, भय, मानकों, लक्ष्यों और खतरों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। संभावित आत्म भविष्य में व्यवहार के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करता है। व्यक्ति के पूर्व और भविष्य के आत्म उसके तत्कालिक आत्म से संबंधित होते हैं। आत्मसंप्रत्यय के बारे में कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो के प्रयास मुख्य रहे हैं। रॉजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श आत्म चाहता है। यह व्यक्ति आदर्श आत्म के जितना निकट होगा वह उतना ही प्रसन्न होगा। रॉजर्स के अनुसार व्यक्ति की प्रसन्नता में एक और कारक होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आमतौर पर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत निकट परिवारों में होता है। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति में चाहे जितने ही अवगुण क्यों ना हो, ठीक है, उसमें कितनी कमियां क्यों ना हो, पर फिर भी हम उसका हमेशा प्रोत्साहन करेंगे। इसीलिए क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको याद रखना है कि आपने उन विद्यार्थियों को हमेशा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। उनकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए यू हैव टू गिव देम द बेस्ट ट्रीटमेंट, बी वेरी courteous to them and try to develop good qualities in them and make them the best students. Thank you. Important points: self-concept, self-actualization, components of self-concept, and congruence. Thank you.